So, good afternoon to all, and welcome back to today's lecture. After 2 days, we are meeting. So, last time we had completed with the arithmetic mean and its properties. Going to start is today with the geometric mean, harmonic mean. We have to cover this topic today. तो ये पहले भी आपने किया हुआ है. We'll just recapitulate the same. तो इंट्रोडक्शन आई हैव रिटन ओवर हियर. ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास क्या है? फॉर द इंडिविजुअल सीरीज दैट इज x1 x2 x3 अप टू सो ऑन. मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, वी विल टेक इट एज द nth रूट ऑफ द वैल्यूज. जितनी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, we will take the nth root of the product of the values. So x1 dot x2 dot up to xn, a nth root. Written like this, it is known as the geometric mean of these values. Similarly, if we go for the frequency distribution के लिए हमारे पास geometric mean कैसे आता है? Frequency distribution means correspondingly frequency दे रखी होगी हमें. तो हमने जब geometric mean निकालना है, first of all we will raise the power of frequency to the variable. x1 power f1 dot x2 power f2 dot x3 power f3 up to so on xn power fn. इस सब का nth रूट लेना है. यहाँ पे जो nth रूट था, it was the number of variables, because in the individual series we deal with the number of variables. और यहाँ पे जो nth रूट है, that is the capital N, it is the sum of frequencies. ये चीज का यहाँ पे फर्क है, right? Is the board clear now? Someone has said that the board is not clear. बच्चे पहले मेरे को ये बताओ, is the board clear now? Okay. So I was talking about the geometric mean. मैंने कहा individual series में हमने small n लेना है. Small n is the number of terms that are in the individual series. And frequency distribution में हमने capital N लेना है. Capital N is the sum of frequencies. जो हमारी frequencies आती हैं, उसके sum को हम capital N कहते हैं. And in the continuous series में x1, x2, x3 क्या होते हैं? They are the mid values of the given interval. ठीक है, जैसे हम पहले काम करते थे, so they are the mid values of the given interval, right? तो ये चीज हमारे पास आएगी for the geometry. अब बेटा इस वे में geometric mean को कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, हमारे लिए टेबल बनाना मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे? We will take log for the practice purposes. What we will do is we take log on both sides. log लेते हैं, यहाँ पे log m power n फॉर्म आ रही है. हमें पता है log m power n क्या होता है? n log m. तो ये चीज क्या आ जाएगी? 1 by n log of x1 x2 up to xn, right? अब ये चीज भी सबको पता है, log a डॉट b क्या होता है? log a प्लस log of b, राइट? तो जितने भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ये चीज क्या आ जाएगी? 1 by n log x1 प्लस log x2 अप टू सो ऑन log xn. ये चीज आपके पास आ जाएगी. इट मीन्स हमारे जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, इट विल be in the form of log summation of log xi, right? यहां से आप log g निकालेंगे. आपने करना क्या है? जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, टेबल आप कैसे बनाएंगे? ये फॉर्मूला आप अपने ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज करेंगे. टेबल आप कैसे बनाएंगे? आपने xi's आपको दे रखे हैं, आपने हर एक xi का log लेना है. उस log xi का समेशन ले लेंगे. That summation will get divided by n, which is the number of terms in the individual series.
उसके बाद वो मेरे पास क्या आएगा, log g। जब log g आ गया तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दैट इज एंटी लॉग ऑफ log g। तो ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे log g निकाला है उसका एंटी लॉग, दैट विल बी माय ज्योमेट्रिक। इज इट ओके? हाँ जी बेटा, यस और नो? यस मैम। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिखी थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है g, it is x1 power f1 dot x2 power f2 dot x3 power f3 up to xn power fn power 1 by n। बेटा इसमें भी वही काम करेंगे हम, we take log on both sides। तो log m by n power n का फॉर्मूला लगाते हुए ये चीज क्या आ जाएगी, 1 by n log of x1 f1 x2 f2 x3 f3 up to xn f। अब बड़े ध्यान से इसको देखना है, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, मैं वो चीज आपको बता, 1 by n इसका आपसे प्रैक्टिस पर्पस में कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग कि आपका फॉर्मूला कैसे बनना है। फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x1 f1 डॉट x2, ये चीज बन रही है a डॉट b डॉट c एंड सो ऑन। तो लॉग लेते हैं तो ये चीज क्या आ जाएगी, लॉग x1 f1 प्लस लॉग x2 f2 प्लस लॉग x3 f3 अप टू सो ऑन लॉग xn fn। अब इन पर्टिकुलर लॉग्स पे हम लॉग m पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये चीज क्या आ जाएगी, f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस f3 log x3 अप टू fn log xn। ये चीज मेरे पास बनेगी। इट मीन्स योर ज्योमेट्रिक मीन का लॉग जो है इट इज इक्वल टू 1 by n समेशन ऑफ fi log xi। तो आपने बेटा ये फॉर्मूला इसका याद रखना है, जैसे आपने पिछले केस में 1 by n समेशन log xi याद रखा था, यहाँ पे log xi के साथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। तो काम आपका यही रहेगा, जो आपका xi दे रखा होगा, xi का पहले आप log लेंगे, log xi को fi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज का आप सम लेंगे, that sum will be equal to इस सम को आपने 1 by n where n is the summation of frequency उसके साथ डिवाइड करना है, that thing is equal to log g। हमें g चाहिए तो इस log g का हम एंटी लॉग ले लेंगे, that will be my geometric mean g। is it okay? okay, firstly I am going to discuss is with the question of individual series। तो बेटा आपको xi दे रखा है, आपने इस डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स आपने पहले साइड पे फॉर्मूला लिखना है या टेबल के नीचे log g
जो है हमारे पास क्या है 1/n समेशन लॉग ऑफ xi फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। तो आपने हर एक वैल्यू का लॉग लेना है। लॉग टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर एग्जाम्स। तो लॉग टेबल अगर किसी को नहीं देखना आता या भूल गया है तो वो काइंडली रिवाइज कर लो कि लॉग टेबल कैसे देखना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विल नॉट बी अलाउड टू यू इन योर एग्जाम्स, तो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या है, आप हर एक वैल्यू की लॉग लेंगे। लॉग ऑफ 125 it is coming out to be 2.0969 from the tables you will check. Log 132.1139, log 75, log 10 तो सबको पता है क्या होता है इसकी वैल्यू, log 45, log 5 is 0.6990, log 0.5 is 1 बार। ये आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज होती है when we are in the decimal place, right? 500 का log 2.6990 and 150 का log 2.1761। तो बच्चे ये मेरी सारी लॉग्स की वैल्यू आ रही है। आपको चाहिए समेशन ऑफ लॉग। आपने इसका समेशन ले लेना है। सारी वैल्यूज को जब आप सम अप करेंगे समेशन लॉग xi it will be equal to 13.6143, राइट। दिस इज द नेगेटिव 1 बार जो ऊपर लिखा है, इट मींस ये चीज पॉजिटिव होती है, 1 बार विल एक्ट एज नेगेटिव। आपको पता होगा जब आप लॉग लेते हैं, राइट। तो आपने पहले लॉग जी निकालना है। लॉग जी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज 1/n ऑफ समेशन लॉग xi। लॉग xi का समेशन यहां हमने निकाला 13.6143। n is the number of values given to you। कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड 5 10। तो आपकी ये वैल्यूज है। तो हमारे पास ये चीज आ गई लॉग जी। अब मुझे g चाहिए, इट मींस g इज द एंटी लॉग ऑफ 1.36143। So taking the anti-log हमारा जो इसका आंसर आएगा 22.98 आएगा। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आनी है, टेकिंग लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग लेना और एंटी लॉग लेना आप लोगों को आना चाहिए। जिसको नहीं आता वो मेरे से पूछ लेना, रिवाइज कर लेना, तो आई विल इन्फॉर्म यू कि लॉग एंड एंटी लॉग आप कैसे ले सकते हैं, राइट। Is the question clear to all? Okay. अब बेटा I am going to select the question of the continuous series, क्योंकि continuous series और frequency distribution जो है हमारी सेम ही चलती है। continuous series में हमने अपने इंटरवल के मिड वैल्यू के साथ काम करना होता है और frequency distribution में हमने xi के साथ काम करना होता है। So for the continuous series, right? तो बेटा जी हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है।
मैंने यहाँ पे इसलिए ये छोड़ा है क्योंकि हमें पता है कि वी आर विद द कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो मुझे यहाँ पे अपनी मिड वैल्यू दैट इज एक्स आई निकालनी। So for the interval 200 to 220, मेरा xi क्या आ जाएगा 210. For 220 to 240, it will be 230. Then we have 250. Then we have 270. Then we have 290, and then the last one is 310. अब बेटा मैंने आपको बोला था कि आप अपना पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला जो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का होता है वो मेरे पास है log g। मैं log g की सेंस में बात कर रही हूँ। log g it will be 1 by n of summation fi log xi, right? It means राजे आपने पहले xi का log लेना है, उसको fi के साथ मल्टीप्लाई करना है, उस समेशन को कैपिटल N के साथ डिवाइड करना है। तो सबसे पहला हमारा काम है log xi डिफाइन करना, राइट? log xi, तो ध्यान देना है बेटा हम किस कॉलम का लॉग ले रहे हैं, इस कॉलम का लॉग ले रहे हैं xi का, गलती से भी fi नहीं लेना। हाँ जी हरकमल क्या बेटा रिपीट करना है? अनम्यूट करके मेरे को बताओ आपको क्या चीज नहीं क्लियर हुई राजे? पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज वाला बेटा अब खत्म हो चुका है। आई एम ऑन द सेकंड क्वेश्चन कि हमने ज्योमेट्रिक मीन फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज निकालना है। दैट आई एम टेलिंग यू, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज दिस 1 by कैपिटल N ऑफ समेशन fi log xi। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर तो डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो xi एज सच आपके पास होगा, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो आपको xi एज अ मिड वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी। आपने xi निकाल लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है log xi निकालना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। log xi यानी कि इन टर्म्स का आपने log लेना है, तो 210 का जो log आपके पास आएगा 2.3222। 4 डेसिमल प्लेसेस तक log की टर्म्स कितनी जरूरी होती है इन ऑर्डर टू टेक द एंटी लॉग। 230 का log ये आ रहा है 250 we have 3979, then 270 we have 2.4314, then 290 we have 2.4624, and for 310 we have 2.491। तो ये मेरे पास log xi आ गया। अब अगला काम क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपने log xi के साथ fi को मल्टीप्लाई, इट मींस इस fi को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 into this we will get 9.2 triple A, 16 into this we get 37.787772, then we get 47.9580, and then we get 60.7850, then 25 into this term we get 61.5600, 10 into this term we get 24.91। इस चीज का जब हम सम अप करते हैं दैट इज समेशन ऑफ fi log xi, इट विल बी इक्वल टू 242.29। ठीक है जी, ये मेरा समेशन आ रहा है। अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला मेरे पास ये है दैट इज log g, इट इज 1 by n ऑफ समेशन fi log xi। बेटा समेशन fi log xi की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 242.293। उसको हमने कैपिटल N के साथ डिवाइड करना है। कैपिटल N आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कैपिटल N मेरे पास क्या होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 आ रही है, उसको 100 के साथ डिवाइड किया तो इट विल बी 2.4229। ये मेरे पास आ गया log g। आई वॉन्ट g, इट मीन्स मुझे इसके आंसर का क्या लेना है एंटी लॉग, दैट इज 2.4229। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे
that turns out to be 264.8. तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा, that is 264.8. हाँ जी, is the question clear? बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो, डू रिप्लाई एंड बी क्विक. नहीं क्लियर तो फिर मैं रिपीट करना पड़ेगा. Harkamal, is the question clear to you now? Okay. बेटा बीच बीच में बोर्ड ब्लर्ड हो रहा है, मे बी ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज. पता नहीं, अब मेरे में तो कोई इशू आ नहीं रहा. आई डोंट नो इट्स ऑन योर साइड और माय साइड. तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो. मेरे को जो मेरे यहाँ पे एंगल पे वीडियो नजर आ रही है उस पे बोर्ड एकदम साफ नजर आ रहा है मुझे. आई डोंट नो वेयर द नेटवर्क इश्यूज आर अराइजिंग. ओके, दीपांशु इज राइटिंग मेरे में प्रॉब्लम है. सॉरी फॉर दैट. Abhida, I am going to write the question. Kindly take note it or take the click of it, and you have to solve at your own place, and will tell the answer to me tomorrow, right? बच्चे ये नोट कर लो क्वेश्चन. ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट करना है ऑफ दिस, एंड यू विल रिवर्ट द आंसर टू मी टुमारो. Coming to the next topic, that is harmonic mean. अब बेटा पहले तो बड़े ध्यान से पिछले क्वेश्चन में किसी ने पूछा है जो 10 के नीचे फ्रीक्वेंसी है वो क्या है. 10 के नीचे, आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन ओरली. माय वैल्यूज ऑफ x वर 10, 20, 30, 40, 50 and 60, and correspondingly frequencies were 10 के नीचे 12, opposite to 20 the frequency is 15,
देन टू 30 25, 40 की फ्रीक्वेंसी है 10, 50 की फ्रीक्वेंसी है 6 एंड 60 की फ्रीक्वेंसी है 2, राइट? तो बच्चे नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ हार्मोनिक मीन। बड़े ध्यान से सुनना है कि मैं हार्मोनिक मीन के बारे में क्या बताने जा रही हूँ। हार्मोनिक मीन मेरे पास क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। पर किस चीज का अर्थमेटिक मीन? रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। 2 बार रेसिप्रोकल आया है। आई रिपीट, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किस चीज का रेसिप्रोकल? अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब किस चीज का अर्थमेटिक मीन निकालना है? जो हमने वैल्यूज ली हैं उनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन निकालना है। गॉट माय पॉइंट? तो हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल सीरीज की बात करने जा रही हूँ। मुझे डाटा इस फॉर्म में दे रखा है। हार्मोनिक मीन के लिए पहले मैंने अपने डाटा का रेसिप्रोकल करना है। इट मींस मेरा जो डाटा आएगा इन द रेसिप्रोकेटेड फॉर्म 1 by x1, 1 by x2, 1 by x3 अप टू 1 by xn, ये डाटा आ गया। अब बच्चे मैंने इस रेसिप्रोकेटेड डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस रेसिप्रोकेटेड डाटा विल बी समेशन ऑफ 1 ऑफ xi। अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का क्या होता है? इसको सम अप करो और n से डिवाइड करो। इसी तरह से इस डाटा को सम अप करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by n ऑफ समेशन 1i xi। अब ये तो आया इस रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन। मुझे चाहिए हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन इज द 1 ओवर दिस अर्थमेटिक, यानी कि इस अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल 1 by n summation 1 over xi। This is known as the harmonic। Any doubt? Shall I repeat? Clear है कि shall I repeat? हाँ जी, any one of you इतना ही लिख दो, रिपीट करना है कि चलें आगे? ओके, रिपीट कर दो। फाइन। So what I have to do is, मुझे डाटा दे रखा होगा। First of all, I will take the reciprocal of each and every value। हर एक वैल्यू की रेसिप्रोकल आप। अब बेटा देखो, अगर मुझे ये इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होना था? x1 plus x2 up to xn divided by n, यानी कि summation of xi divided by n, summation of the terms divided by the number of terms। अब मैंने क्या किया? फॉर द हार्मोनिक मीन हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले। जब हर एक टर्म का रेसिप्रोकल आ गया, उन टर्म्स का अब अर्थमेटिक मीन लिया है। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब? इस डाटा को सम अप किया और नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड कर, दैट इज समेशन ऑफ 1 over xi डिवाइडेड बाय n, व्हिच कैन बी रिटन एज 1 by n ऑफ दिस। ये मेरा है अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा। मुझे चाहिए हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा? इस अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 over this thing, 1 by n summation 1 over x। So this is the harmonic mean of the individual series, right? अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या दे रखा होगा? f1, f2, f3 अप टू fn, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, राइट? वही काम करना है। हमने रेसिप्रोकल लेना है, पर सिर्फ एक्साइज का, फ्रीक्वेंसी का नहीं। ये चीज लेकर चलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी एक्साइज की है वही फ्रीक्वेंसी इनके रेसिप्रोकल की होगी। रेसिप्रोकल में आकर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो हमने क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है एक्साइज का, दैट इज 1 over x1, 1 over x2, 1 over x3 अप टू 1 over x। अब बेटा जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम
अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो वो चीज क्या आती है, f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 up to fn xn divided by summation of frequencies। अब मेरे पास x1 x2 x3 नहीं है, मेरे पास ये रेसिप्रोकल्स है जिसके साथ मैंने काम करना है। तो मेरे पास इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, f1 into 1 over x1, f2 into 1 over x2 up to so on fn into 1 over xn divided by the summation of frequency, यानी कि summation of fi xi divided by capital N which is the summation of frequency। ये चीज आई है मेरे पास अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन रेसिप्रोकेटेड डाटा। मुझे हार्मोनिक मीन निकालनी है, तो हार्मोनिक मीन के लिए व्हाट आई विल डू इज I will take the reciprocal of this arithmetic mean, that is 1 over summation fi xi into 1 by। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डाटा, जो मुझे ये डाटा दे रखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हार्मोनिक मीन मेरे पास ये है। ओके जी, या सॉरी इसमें ऐसे लिखना था समेशन fi। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस तरह से हमने अपने हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस करने हैं। तो लेट प्रोसीड विद द क्वेश्चन। दिस लेक्चर ओवर, अभी 5 मिनट है हमारे पास। तो बेटा क्वेश्चन की बजाय आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन हम इसका कल करेंगे, राइट? पहले ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन कर लो, उसके बाद रिलेशन बिटवीन arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, right? If एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम हाँ जी, मैम बोर्ड दिख नहीं रहा ऊपर, ऊपर तक, ऊपर क्या वाली हो गया? फर्स्ट लाइन अब दिख रही है। ओके, फोकस नहीं था, अब ठीक है जी। तो हमारे पास है इफ a, g and h are respectively the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, then g square it is equal to ah, यानी कि geometric mean का square it is equal to ah, right? अब बेटा हम इसको प्रूव करने के लिए, ये 2 मार्क्स में कभी आ जाता होता है प्रूफ, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। 2 वेरिएबल्स लेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे। लेट अस सपोज a and b are 2 पॉजिटिव नंबर्स, राइट? एक्सक्यूज मी मैम, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स क्या आएगा? इन दोनों को ऐड किया, 2 के साथ डिवाइड कर, यही आएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन। यस और नो? से यस और नो, अर्थमेटिक मीन ये आएगा कि नहीं? ओके, यस मैम। अब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें। ज्योमेट्रिक मीन मैंने बात की थी, n वेरिएबल्स हैं, इट मींस उनका प्रोडक्ट उसका nth रूट। मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। n वेरिएबल थे तो nth रूट लिया था, 2 है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 आएंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे। यही काम करना है हमने। कमिंग टू हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है? आपको मैंने बताया 1 by n of the reciprocal of the variables,
यानी कि ध्यान देना है, रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1/2, यहाँ पे 1/n आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1/2 ऑफ 1/a प्लस 1/b, यही चीज आएगी। इनका रेसिप्रोकल लिया, उन रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन लिया और उस चीज को रेसिप्रोकेट कर दिया, वो हार्मोनिक मीन होता है। इसलिए मैंने आज क्वेश्चन नहीं शुरू किए क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो इस चीज को पहले ध्यान से आपने रिवाइज करना है, राइट। अब इसको हम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 ओवर यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा ओवर 2a, राइट। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 2ab ओवर a प्लस b, ये चीज आ गई। अब बेटा मैंने प्रूव करना है g स्क्वायर इट इज इक्वल टू ah। जब भी कभी दो साइड्स को प्रूव करना हो ना इक्वल है, हमेशा लेंथी वाली साइड से शुरू करो ताकि हम इजी वाली साइड पे आ जाए। डिफिकल्ट टू इजी अप्रोच करना बहुत आसान काम है, इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच करना मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस, कंसिडर a इंटू h। a मेरे पास क्या आ रहा है, a प्लस b/2 डॉट h क्या आ रहा है, 2ab ओवर a प्लस b। a प्लस b कैंसिल हो गए, 2 and 2 कैंसिल हो गए, वी आर लेफ्ट विद ab, राइट। अब ab मेरे पास क्या है, आप देख सकते हैं g क्या है, g इज ab का अंडर रूट, तो ab क्या आएगा, g का स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया ah इट इज इक्वल टू g स्क्वायर। ओके जी, एक प्रॉपर्टी इसकी और रह गई है, उसको हम कल करेंगे और हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस कल करेंगे। देन वी विल बी ओवर विद द मीन, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी मीन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द मीडियन। ओके जी।